talking about the global scenario as well, तो I was also reading that चाइना में ये इंडस्ट्री में बहुत डिक्लाइन हुआ था over the last 5 years, and उसमें मतलब काफ़ी सारे कंपनीज had also faced a lot of trouble because of P2P lending. तो चाइना में क्या डिफरेंस ऐसे सिनेरियो था, एंड हाउ कैन वी एंश्योर कि इंडिया में ऐसा ना होना चाहिए? So I think we should be thankful to our regulators. They have little bit long future foresight nets. जैसे चाइना के अंदर 2017 तक P2P lending market was exploding like anything. They overtook US market within 3 years, and when US market was like $50 billion worth of, China was like $400 billion worth of. I also visited China, met few players there in 2017, but realized couple of issues. The model which was being operated in China, वो एक डिपॉजिट टेकिंग NBFC का मॉडल था, जहाँ पे प्लेटफॉर्म पूरा पैसा ले लेता है एंड खुद डिसाइड करता है किसको देना नहीं देना, एंड जो भी वापस आया उसके ऊपर इंटरेस्ट देना भी प्लेटफॉर्म अपनी बुक से करता है. सो दैट इज़ वन फंडामेंटल इशू विद द P2P मॉडल, कि उस तरीके से आप ऑपरेट करोगे तो वो P2P मॉडल है ही नहीं. P2P मॉडल का पॉइंट क्या होता है कि आप एज अ लेंडर जो पैसे लेके आ रहे हो वो 1-to-1 कनेक्शन में बोरोवर के साथ कनेक्टेड होने चाहिए. अगर वो बोरोवर ने पे किया तो ही आपको मिलने चाहिए, अगर वो बोरोवर ने नहीं पे किया तो आपको नहीं मिलने चाहिए. बट अगर सारे बोरोवर ने पे किया तो आपको बेटर रिटर्न भी मिलना चाहिए. तो वहाँ पे वो फंडा फॉलो नहीं किया जा रहा था. एंड सेकेंड, एट लॉट ऑफ इन सर्टेन केसेस इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व कि बोरोवर्स से पे किया जा रहा था वो इंटरेस्ट रेट 6-7% था, वेरेज लेंडर को 9-10% दिया जा रहा था. तो देयर वॉज अ क्लियर मिसमैच बिटवीन व्हाट इज़ बीइंग पेड एंड व्हाट इज़ गिवन. सो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रहे थे या तो रिस्क कैपिटल अवेलेबल था जिसकी वजह से वो फंड हो जाता था. बट एज एंड व्हेन more number of defaults started, they saw a problem, and then in 2018 Chinese regulator cracked down that market, and they took heavy actions, and धीरे धीरे करके P2P market वहाँ से almost disappear हो गया अब. But our regulator knew that this can be a problem, so it's always better to regulate the industry in the initial phase. So आप देखोगे तो चाइना में वो क्रैकडाउन 2018 में चालू हुआ, but RBI came up with the regulation in 2017 itself, so that China-like situation doesn't happen in India. Vis-a-vis in UK and US, P2P lending became very famous, and it is adding value to lot of small marginal customers on both business side as well as salaried side. So I think RBI as a regulator understood that point at right time. So they came up with the consultation paper, white paper, and initially showed the interest of regulating it, and ultimately came up with the regulation in October 2017. So I think that way regulations are important so that industry doesn't become much large and suddenly explodes. And जो recent regulation की भी बात आपने करी, वो 2024 अगस्त में रिवाइज किए गए, and then that also happened after 6-7 years long time. So regulator was observing, they were studying, they were guiding the P2P platforms कि ये बदलाव लाने चाहिए, ये प्रैक्टिसेस चेंज होनी चाहिए, ये प्रैक्टिसेस अच्छी है, बेटर कर दीजिए. एंड देन दे इनकॉर्पोरेटेड दैट इन द मास्टर डायरेक्शन, एंड दैट वाज पब्लिश्ड इन अगस्त लास्ट ईयर. कैन यू डबल क्लिक मोर ऑन योर ट्रिप टू चाइना, एंड आपने वो ट्रिप से क्या सीखा एग्जैक्टली अबाउट द customer mindset of China or people of China, and how they are different from India? So there were two parts. One is a good part, one is a bad part. तो bad part तो already मैंने आपको explain कर दिया. Good part में ये था कि the way Chinese company thinks growth, they don't think like double up करना है या 2.5x करना है. They always think like 10x कैसे करूँ, 20x कैसे करूँ, 30x कैसे करूँ. एक साल में? एक साल में. Wow. I met one of the P2P lending company जिसका आई थिंक कम से कम 20 फ्लोर का एक पूरा बिल्डिंग था. उतनी बड़ी टीम थी उस टाइम पे, एंड आई थिंक दे हैड ओरिजिनेटेड रफली अराउंड $35-40 billion वर्थ ऑफ लोन within 3 years time period. $40 billion. That is the kind of growth they look at. So that was good part. Second was they have a very good risk capital supply, and that is coming from their local market. सो लेट्स से इंडिया के अंदर ही हमारे लोकल कैपिटल इतना अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ वेंचर कैपिटल, गवर्नमेंट कैपिटल, जो लोकल बिजनेसेस को या तो नए स्टार्टअप को फंड कर सके. तो वहाँ पे लोकल सपोर्ट वाज वेरी हाई. जैसे एज अ स्टार्टअप आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है ऑफिस के लिए, आपको बहुत सारी ग्रांट्स इजीली मिल जाती है, एंड देन रिस्क कैपिटल अवेलेबल है, तो आपके लिए ग्रोथ करना काफ़ी आसान हो जाता है. वेयर एज इन इंडिया इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आई हैव सीन दैट 9 years जर्नी, तो आई कैन टेल यू
यू ऑल्सो इंटरेक्ट विथ सो मैनी स्टार्टअप्स, तो आपको भी पता होगा, राइट? तो ये दो चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर थी उनके ग्रोथ में. एंड चाइना के अंदर ऐसा नहीं था कि P2P कंपनीज के ग्रोथ ऐसे थे. अब वहाँ का कुछ भी ले लीजिए. टुडे इफ़ यू लुक बैक लास्ट 10 years ऑफ EV स्टार्टअप्स, आज वो बड़ी बड़ी कंपनी बन चुके हैं, विच आर नाउ गिविंग कॉम्पिटिशन टू GMs ऑफ द वर्ल्ड और Volkswagens ऑफ द वर्ल्ड. सो दैट इज़ हाउ चाइनीज़ कंपनीज ऑपरेट. तो आई थिंक उनका जो माइंडसेट है कि यार एक 1x 2x 3x में कुछ नहीं होता है, लेट्स टारगेट 10x 20x, वो एक्सेप्ट हमें एडप्ट करना चाहिए. बिकॉज द लार्जर यू ड्रीम, लार्जर यू थिंक अबाउट एनीथिंग, यू विल ट्राई टू टेक योर सेल्फ टूवर्ड्स इट. तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा इंडियन इकोसिस्टम और चाइनीज इकोसिस्टम के बीच. So you think like India can learn about the mindset thing from China? 2x, 3x, 10x, growth mindset. वी आर लर्निंग, वी आर एक्सप्लोरिंग. सो इंडिया के अंदर भी आप देखोगे तो लास्ट 2 साल में जैसे टाटा और महिंद्रा के EVs आ रहे हैं. सो अलग अलग सेक्टर में हो रहा है. आई थिंक वी आर येट टू reach the Chinese level. I think it will take 1 more decade for us. But we are on that track. Got it. And with new age founders coming into who doesn't know lot of things, I think they are challenging status quo. Because when you know things, you always have a shell around you कि अरे ये तो मुझे पता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए या तो ऐसा नहीं हो सकता है. But when you don't know things, you don't know the limit. Then you say कि अच्छा ये तो हो सकता है, चलो फिगर आउट करते कैसे होता है, राइट? सो P2P लैंडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ दैट थिंग कि भाई अच्छा हमें तो पता नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, चलो ट्राई करते हैं, हो तो सकता ही है, right? So that is a mindset we think. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.